Hello students, welcome to class 11th chemistry video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. I hope you all are doing well at your home. Today we will discuss chapter number 3, that is classification of elements and periodicity in properties. This is the part 1 video of this chapter. In this chapter, topics to be covered like modern periodic law and the present form of periodic table. So, what is the deleted topic in this chapter in session 2020-21? Significance of classification, brief history of the development of periodic table. It means मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जो स्टार्टिंग के जो 2 टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक पूरी तरह से कैंसिल हो गए हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, और ब्रीफ हिस्ट्री इट मीन्स मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल है और इससे पहले का जो न्यूलैंड लॉ है वो डिलीट हो चुका है. सो रिगार्डिंग दिस टॉपिक डिलीटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3 ये भी डिलीट हो गए. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल? Periodic table is an arrangement of element with similar properties placed together. It means similar property वाले element को हम एक साथ रखेंगे, grouping करेंगे. Now modern periodic law and the present form of periodic table. We must bear in mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about the internal structure of atom. It means doesn't know about the proton, electron and neutron. In 1930, the English physicist Henry Moseley observed regularity in the characteristics X-ray spectra of the element. A plot of nu, what is the meaning of nu? It is the frequency of X-ray. It means उन्होंने एक्टिविटी करी फ्रीक्वेंसी के बीच में एंड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर, और एक ग्राफ को प्लॉट किया और उसमें रिलेशन निकला. इट इज द स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट न्यू वर्सेस द एटॉमिक मास. इट मीन एटॉमिक मास को न लेकर एटॉमिक नंबर को लिया गया. तो क्या ग्राफ था उसको हम व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं. व्हाट इज द ग्राफ? वी कैन सी दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. We take the on x-axis atomic number. It means atomic number represented by the capital Z, and frequency denote on the y-axis. It means under root nu. Okay, so it means graph obtained like this. It means under root nu is directly proportional to atomic number. इट मीन प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आफ्टर डेट z माइनस बी. ये रिलेशन ऑब्टेन किया मोजले ने और ये बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पे. यहाँ जो a है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और जो b है वो भी कांस्टेंट है फॉर द ऑल लाइंस ऑफ एक्स-रे. So this is the graph between the frequency and atomic number. Straight line obtained. He thereby show that atomic number is a more fundamental property of element than its atomic mass. Mendeleev periodic law was therefore accordingly modified. This is known as modern periodic law and can be stated as physical and chemical properties of the element are periodic function of the atomic number. यानी एक फिक्स इंटरवल के बाद जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट होगी, लेकिन अब जो वो एटॉमिक मास पे डिपेंड ना कर किस पे डिपेंड करेगी? एटॉमिक नंबर पे. तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. Numerous form of periodic table have been devised from time to time. Some forms importance chemical reaction and valence, whereas other stress the electronic configuration of element.
and we can know about the electronic configuration in chapter number 2. A modern version, the so called long form of the periodic table, यानी इसका एक और नेम है long form of the periodic table of the element, is the most convenient and widely used. The horizontal row, which Mendeleev called series, are called period, and the vertical column is known as group. Element having similar outer electronic configuration in their atom are arranged in the vertical column, referred to as group or family. According to the recommendation of International Union of Pure and Applied Chemistry, in short form IUPAC, the group are numbered from 1 to 18. So in the modern periodic table, group are indicated by number 1 to 18, replacing the older notation. Older notation means Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table में ग्रुप को हमने किससे इंडिकेट किया था? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, इट मीन सेवंथ ए, आफ्टर एट्थ, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, डैश डैश डैश, सेवंथ बी के बाद जीरो. ठीक है, इट मीन दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Here this is the column and this column is known as group. First column, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So this column is known as group. It means this is the group number. Group number indication means these elements are similar property. Like this, group 13 element, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, these elements show the similar property. So that's why it occupies the same group. Same group means similar properties. After this, rows, first row, second row, third row, fourth row, fifth row, sixth row and seventh row. Row means number of period. Okay student, number of period का means this element, one period का means this element occupy only one shell. Second period means it means lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon has only two shell filled by the electron. Number of period, third shell means sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. It means these elements occupy the three shell filled by the electron. Number of period 4 means potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium, bromine and krypton. ये जो पीरियोडिक टेबल है आप NCERT बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 79. If you have NCERT book, then open the page number 79 और ये periodic table आपको NCERT से भी आप देख सकते हैं. After it, number of period 5, 6 and 7. Here in the bottom, inner transition element are present. Inner का means F block element. It means these rows belong to the third group. This is the first star. First star means after the lanthanum. La means lanthanum. These 14 element 58 to 71, these 14 element occupy this place or this place belong to the third group. Similarly double star yani actinum, after the actinum these 14 element like this 90 to 103 atomic number occupy this place, it means belong to the third group. It means F block element में जो group रहेगा वो क्या रहेगा, fix रहेगा, 3 रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पीरियड हमने डिस्कस किया. पीरियड का मतलब क्या था? नंबर ऑफ रो. रो का मीन्स नंबर ऑफ शेल्स. द हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड. देयर आर 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. 7 रो हमने देखी. नंबर फर्स्ट पीरियड इट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन से हीलियम, कंटेन ओनली 2 एलिमेंट. It is the shortest period. It means first period is known as shortest period. After it, second period starting from lithium to neon, it means atomic number 10 neon, and third period starting from sodium to argon, contain 8 elements each. These are short period. It means second and third period are known as short period. After it, fourth period potassium to krypton,
this is the krypton, atomic number 36, and fifth period starting from rubidium, 37 atomic number, to xenon till 54 atomic number, contain 18 element each. These are long period, it means fourth period और fifth period में जो element है वो कितने हैं, 18 element हैं, so that's why this is known as long period. After that, sixth period starting from cesium, atomic number 55, to radon, atomic number 86, consist of 32 element, is the longest period. सबसे बड़ा period कौन सा है यहाँ पे, sixth period यानी sixth row. After seventh period starting with francium, atomic number 87, is incomplete and consist of only 19 element. It means seventh row complete नहीं है. In this form of periodic table, 14 element of both sixth and seventh period, जो हमने डिस्कस किया था, F block element, वो ग्रुप कौन सा था, 3 था, और 6 पीरियड से भी बिलोंग करते हैं और 7 से भी बिलोंग करते हैं. 6 पीरियड से बिलोंग करने वाले को हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड, और 7th पीरियड से बिलोंग करने वाले को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड. आर प्लेस्ड इन द सेपरेट पैनल एट द बॉटम. The period number correspond to the highest principal quantum number. इतनी पीरियड का मतलब क्या था, नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल क्या इंडिकेट करती है, कौन सी क्वांटम नंबर इंडिकेट करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था. तो इट मींस दिस इन द दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिस 14 एलिमेंट इज आल्सो नोन एज लेंथेनॉइड and this 14 element is also known as actinoid. So this actinoid belong to the third group or 7th period, but lanthanoid belong to the 6th period. Okay student? Now many anomalies of Mendeleev table disappear, such as the number 1, position of isotope. So what is the definition of isotope? It means different atom of same element which is the same atomic number but different mass number. Since the isotope of same element possesses the same atomic number, so they should occupy one and the same position in the periodic table. तो ये जो ड्रॉबैक था, ये ड्रॉबैक किसका था, मेंडलीफ का था, जो कि शॉर्ट आउट हो गया. किसमें शॉर्ट आउट हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. एंड नेक्स्ट सेकंड, डिसिमिलर एलिमेंट वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. डिसिमिलर एलिमेंट कौन से थे, लाइक एल्कली मेटल आर प्लेस्ड विद द कोइनेज मेटल. कोइनेज मेटल मींस कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल को किसके साथ रख दिया गया था, कोइनेज मेटल के साथ, जो कि ये भी शॉर्ट आउट हो गया. किसमें शॉर्ट आउट हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. आफ्टर डेट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, S, P, D, F below. It means when we can classify the elements into 4 blocks, that is S block, P block, D block and F block, depending on the type of atomic orbital that are being filled with the electron. जिस particular orbital में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वही क्या कहलाएगा, उस particular block का element कहलाएगा. Like we notice 2 exception to this categorization. Strictly helium belong to the S block but its positioning in the P block. Actually में according to definition helium किस में आना चाहिए, S block में आना चाहिए, but practically periodic table में उसको कहाँ रखा गया है, P block में. With other group 18 element is justified because it has the completely filled valence shell 1s2. So that's why these helium atom put within the 18 group. It means noble gas. The other exception is hydrogen. We have discussed in the chapter number 9. It has only one s electron and hence can be placed in the group 1. Group 1 means alkali metal. It can also gain electron to achieve a noble gas arrangement and hence it can behave similar to a group 17. It means group 17 से भी similarity दिखाएगा. It means halogen group. We shall place hydrogen separately at the top of periodic table. It means ना तो हम इसको ग्रुप फर्स्ट में रख सकते हैं, ना ही 17 में, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों से सिमिलरिटी दिखाता है, तो हमने इसको एक सेपरेट प्लेस दे रखा है टॉप पे. तो देयर आर 2 एक्सेप्शन अकर. नाउ एस ब्लॉक एलिमेंट, the element of group first like alkali metal and group second alkaline earth metal we have discussed in the chapter number 10, which have electronic configuration ns1. What is the meaning of n?
number of period. And NS2 outermost electronic configuration. It means NS1 किसका होगा? alkali metal का, and NS2 किसका होगा? alkaline earth metal का. Belong to the S block element. They are all reactive metal with low ionization enthalpies. They lose the outermost electron readily to form +1 ion in the case of alkali metal, or +2 ion in the case of alkaline earth metal. So we can see in the modern periodic table, आप पेज नंबर 79 पे आ जाएंगे, वहां आपको ये पीरियोडिक टेबल दिखेगी. तो ये जो ग्रुप नंबर 1 है एंड ग्रुप नंबर 2 है, ये किससे बिलोंग कर रहा है? एस ब्लॉक एलिमेंट से. इट मीन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस में मूव करेगा? एस ऑर्बिटल में. और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2. सो दैट्स व्हाई ग्रुप भी कितने हैं इसमें? 2 हैं, जो कि हमने डिस्कस कर रखा है चैप्टर नंबर 10. आफ्टर डेट नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स. द पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइज दोस बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. ग्रुप मीन्स कॉलम नंबर 13 टू कॉलम नंबर 18. These together with the S block element are called representative element. It means S block और P block को collectively हम क्या बोलेंगे? representative element और main group element. The outermost electronic configuration varies from NS2 NP1 to NS2 NP6 in each period. तो इट मीन्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीरियड. तो हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं, पेज नंबर 79, P block element. So this is the group 13, 14, 15, 16, 17, 18. This is the known as P block element. It means last electron कहाँ move करेगा? P orbital में. It means like this 2s2 2p1. It means 2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है इसमें? सेकेंड. ठीक है, तो सेकेंड पीरियड है, so that's why 2s2 2p1. This group after aluminium belong to the third period. It means 3s2 3p1. Similarly Ga gallium, it means belong to the fourth period, 4s2 4p1. Similarly 14 group, this belong to the ns2 np2. It means carbon belong to the second period, so second period it means 2s2 2p2. Silicon belong to the third period, it means 3s2 3p2. Similarly 15 group configuration ns2 np3. N means number of period, so like this nitrogen belong to second period, 2s2 2p3. Group number 16 electronic configuration ns2 np4. It means oxygen belong to the period number second and sulfur belong to the period number third period. And group number 16, it means element is sulfur, electronic configuration 3s2 3p4. Now fluorine belong to the second period, it means 2s2 2p5, because fluorine belong to the group number 17, it means ns2 np5. Similarly chlorine 3s2 3p5, 3 means number of period 3. After that, this is the noble gases, group number 18, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Atomic number helium number 2, for neon atomic number 10, for argon atomic number 18, for krypton atomic number 36, for xenon atomic number 54, and for the radon atomic number 86. So group number 13 to group number 18 belong to the P block element. After that, D block elements, these are the element of group 3 to 12. In the center of the periodic table, these are characteristic by the filling of inner d orbital. It means d में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? inner shell में, n-1 by the electron and are therefore referred to as D block elements. These elements have the general outer electronic configuration n-1, d vary 1 से लेके 10 तक and ns 0 से लेके 2 तक. Like this in the modern periodic table page number 79, this is the group number 3 से लेके group number 12, starting from period 4 से लेके क्या रहेगा? 7 रहेगा. इट मीन n की वैल्यू 4 से लेके 7 तक वेरी करेगी.
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये जो एलिमेंट हैं 3 से लेके 12 तक, ये तो हमने केवल एक सीरीज को हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली स्कैंडियम के नीचे क्या है, वाई, इट्रियम, ठीक है। तो ये जो ग्रुप नंबर 3 से लेके ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट है 12 तक क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसमें इलेक्ट्रॉन एन शेल में जाकर n-1 डी सब शेल में मूव करेगा। आफ्टर डेट फॉर ट्रांजिशन सीरीज आर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। यानी 3D का मतलब n-1 की वैल्यू 3 है, तो n-1 इक्वल टू 3, इट मीन n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यानी 3D जो सीरीज है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होगी। सिमिलरली 6D सीरीज की हम बात करें तो 6 की वैल्यू क्या है, n-1 इक्वल टू 6, इट मीन n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। यानी 6D सीरीज जो है 7th पीरियड से स्टार्ट होगी। The 6D series is incomplete. They are all metal. They mostly form color ion, exhibit variable valence oxidation state, and oftenly used as catalyst. However, zinc, cadmium, and mercury, which have the electronic configuration n-1, d, 10, and s2, do not show most of the property of transition element. It means zinc, cadmium, mercury को हम transition element की सीरीज में नहीं रखेंगे। In a way, transition metal form a bridge between the chemically active metal of S block element and the less active element of group 13 and 14, thus take their familiar name transition element. It means D block element को हम transition element भी कह सकते हैं, but zinc, cadmium, mercury transition element नहीं कहलाएंगे। In the last F block elements, the 2 row of element at the bottom of periodic table कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, 4F सीरीज भी कहते हैं हम इसको। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किस में जाएगा, n-2f में जाएगा। इट मीन 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 4F है, यानी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-2, n-2 इक्वल टू 4, इट मीन n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यानी 4F सीरीज कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रही है, 6th पीरियड से स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लुटेशियम एटॉमिक नंबर 71। आफ्टर डेट एक्टिनोइड्स 5F सीरीज, इट मीन n-2 इक्वल टू 5, इट मीन n इक्वल टू 7। यानी एक्टिनोइड कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 7th पीरियड से। इट मीन थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से लोरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 तक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 से लेकर कहां तक वेरी करेगा, 14 तक, n-1 d 0 से 1, ns2। The last electron added to each element is filled in the f orbital. After that, the 2 series of element are hence called the inner transition element. It means f block हम क्या बोलेंगे, inner transition, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, n-2 शेल में जा रहा है। They are all metals. Within each series, the properties of element are quite similar. The chemistry of early actinoid is more complicated than the corresponding lanthanoid. Due to the large number of oxidation state possible for this actinoid element, actinoids element are radioactive. The element after uranium are called transuranium elements. And after that, metals, non-metal and metalloids. Metal comprise more than 78% of all the non-element and appear on the left side of periodic table. Metal are usually solid at room temperature. Metal usually have high melting and boiling point. They are good conductor of heat and electricity. They are malleable. It means can be flattened into thin sheet by hammering. यानी अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में। और सबसे ज्यादा मलाइबल प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, गोल्ड। वी हैव डिस्कस इन द क्लास 10th। डक्टाइल, इट मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। अगर हम खींचते हैं तो हम लंबे से लंबा वायर बना सकते हैं मेटल से। और सबसे ज्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी भी कौन शो करता है, गोल्ड। तो इट मीन्स हम इसको पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं पेज नंबर 79 पे कि मेटल लेफ्ट हैंड साइड पे कहां पे प्रेजेंट है। तो पेज नंबर 79 में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी एलिमेंट दिख रहे हैं सारे के सारे मेटल हैं। इट मीन बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, अस्टेनेट से जितने भी लेफ्ट हैंड साइड हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगी, मेटल। मैंने क्या बोला, बोरोन, Si सिलिकॉन, As आर्सेनिक, आफ्टर डेट T टेलुरियम,
एंड आफ्टर इट अस्टेटाइन, कि जितने भी इधर एलिमेंट प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में वो मेटल कहलाएंगे, और इसके राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। और ये जो हमने बोला है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, अस्टेटाइन, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, सो दैट्स व्हाई वो क्या कहलाएंगी, मेटलोइड्स कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इट मीन्स हमारे को ये मालूम होना चाहिए कि जो 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप का मतलब कौन सी फैमिली कहलाएगी, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में जो बोरॉन है वो मेटलोइड है। सिमिलरली कार्बन 14 का मतलब क्या, ग्रुप 14 का मतलब क्या रहेगा, कार्बन फैमिली, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है, कार्बन से स्टार्टिंग हो रही है। 15 का मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम निकोजन फैमिली भी कहते हैं। आफ्टर इट ग्रुप नंबर 16 स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, ऑक्सीजन से, इट मीन्स को हम ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे, यहाँ चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। 17 ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीन फैमिली, या जिसको हम हेलोजन भी कहते हैं। और आफ्टर ग्रुप 18 को तो हम क्या कहेंगे, नोबल गैस, जिसको हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। आफ्टर डेट हम वापस मूव कर रहे हैं, मेटल हमने रीड कर लिया है, हम चलते हैं अब नॉन मेटल में। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। Non-metal are usually solid or gas at room temperature with low melting and boiling point, but exception occur boron and carbon. They are poor conductor of heat and electricity. Most non-metallic solid are brittle and are neither malleable nor ductile. The element like silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium show the property that are characteristics of both metal and non-metal. These elements are called semi metal या metalloids. अब लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपको पोजीशन ड्राइव करनी पड़ेगी कि क्या पोजीशन उसकी पीरियड में है एंड ग्रुप में। तो कैसे ड्राइव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 2. The distribution of electron into orbital of atom is called its electronic configuration. An element location in the periodic table reflect the quantum number of last orbital filled. It means हम देखेंगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पर पोजीशन पर है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन निकालेंगे। इट मीन ग्रुप में और पीरियड में। सबसे पहले हम किस में निकाल रहे हैं, पीरियड में निकाल रहे हैं। पीरियड का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ रो। The period indicate the value of n for the outermost or valence shell. It can readily seen that the number of element in each period is twice the number of atomic orbital. It means हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो जितने ऑर्बिटल होंगे उसका हम डबल कर देंगे। अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड। द फर्स्ट पीरियड n इक्वल टू क्या रहेगा, 1 स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ द लोवेस्ट लेवल 1s एंड देयरफॉर हैज द 2 एलिमेंट, बिकॉज हमने पहले बोल दिया एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। इट मीन्स कौन से रहेंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। व्हेन द फर्स्ट शेल के इज कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली हमको कहां से मालूम पड़ेगा, n की वैल्यू देखनी है आपको, n को देख के मालूम पड़ जाएगा कौन सा पीरियड। अगर n इक्वल टू 1 है तो पीरियड 1 है, n इक्वल टू 2 है तो पीरियड 2 है। अब मेन ग्रुप वाइज एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम or group have similar valence shell electronic configuration, the same number of electron in the outer orbital and similar properties. For example, the group 1 element all have ns1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से हम आइडेंटिफाई करेंगे ns1 गिवन है, यानी वो एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, s ब्लॉक एलिमेंट से, और s ब्लॉक से एलिमेंट से बिलोंग करता है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट होंगे वही क्या इंडिकेशन करेगा, ग्रुप को इंडिकेशन करेगा। यानी आप देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी इट मीन्स ग्रुप 1 होगा। लाइक हम यहाँ देख रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम, सब में क्या आ रहा है, s1 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 s1, जबकि आगे जो लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 वो क्या बता रहा है, n का मतलब नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ 2 है तो नंबर ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर का कितना है, 3। अगर वो किससे बिलोंग कर रहा है, p से बिलोंग कर रहा है, इट मीन लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, इट मीन्स वो किससे बिलोंग करेगा, p ब्लॉक एलिमेंट। तो p ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p और प्लस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन d।
तो ये इसको हम कैसे समझे, हम एक एग्जांपल लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा किस तरह से हम पीरियड और ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको ओरली बता दिया है, फिर भी हम इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 30 जो कि पेज नंबर 97 पर है। असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इट मींस हम 30 क्वेश्चन देख रहे हैं एक्सरसाइज का, और उसमें भी फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन गिवन है NS2 NP4 और साथ में दिया हुआ है for n इक्वल टू 3। जैसा कि यहां पे n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इट मीन्स का मतलब क्या है, n इक्वल टू 3 इट मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, यानी जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, 3 से। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, p सब शेल में। इट मीन्स जो एलिमेंट है, एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू p ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब p ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया, नंबर ऑफ ग्रुप निकालना है। नंबर ऑफ पीरियड तो हमने निकाल ही दिया, n इक्वल टू 3 है। अब नंबर ऑफ ग्रुप का क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल आफ्टर डेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल आफ्टर डेट। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, प्लस का 10 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्रुप का आ जाएगा। तो वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4, तो 2 प्लस 4 हो गया। आफ्टर क्या ऐड करना है 10, तो जब इसका समअप करेंगे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 16, यानी जो नंबर ऑफ ग्रुप है इस एलिमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। और आप एलिमेंट का नाम लिखना चाहो तो वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमने वीडियो बनाया था तो हमने देखा भी था कि जो नंबर ऑफ पीरियड 3 और ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन के नीचे वाला एलिमेंट कौन सा होता है, इट मीन एलिमेंट नेम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। अभी हमने जब पीरियोडिक टेबल देखा था तो वहां पे हमने डिस्कस भी किया था सल्फर। अब हम कौन से पार्ट पे आ रहे हैं, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। n-1 D2 NS2 किसके लिए आ रहा है, फॉर n इक्वल टू 4 के लिए। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, इसका मीन्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इट मीन्स फर्स्ट का एक तो आंसर ये आ गया। आफ्टर इट देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। इट मीन डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इट मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हमको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन में गिवन है। एस में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और डी में कितना दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्रुप कौन सा आ गया, 4 आ गया, और पीरियड भी कौन सा है, 4 है। तो इट मीन्स स्कैंडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, टाइटेनियम। तो एलिमेंट का नाम लिखना चाहें क्या हो जाएगा, एलिमेंट नेम इक्वल टू टाइटेनियम। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पेज नंबर 79 पे आप पीरियोडिक टेबल ओपन करके वहां इजीली आप पीरियड इक्वल टू क्या कर दो 4 और ग्रुप आप 4 में देखिए टाइटेनियम एलिमेंट ही आपको मिलेगा। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या गिवन है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वहां से आपको n की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। l जो है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पीरियड बता रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन से ये मालूम पड़ जाएगा कि वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो थर्ड में है n-2 F7
n-1 d1 आफ्टर डेट ns2 फॉर n इक्वल टू की वैल्यू गिवन है 6 गिवन है, तो इट मीन n की वैल्यू 6 है, इसका मीन्स क्या रहेगा, नंबर ऑफ पीरियड आपको गिवन है, कितनी वैल्यू आ गई, 6 आ गई। अब जो ये एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बिलोंग टू, आप देखिए इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एफ में जा रहा है, यानी किससे बिलोंग करेगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट से। और जब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाए इट मीन्स डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, ग्रुप कौन सा लिख देंगे, नंबर ऑफ ग्रुप फिक्स रहता है, कितना रहेगा, 3। अभी हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि जो एफ ब्लॉक थे, एफ ब्लॉक में कौन से थे, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, 14 एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, ग्रुप 3 से ही बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनको हमने बॉटम में रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एलिमेंट का नेम आइडेंटिफाई करना है, एलिमेंट नेम हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे n-2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पे 6। तो जैसे आप यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखते हो, 6 - 2 यानी 4f सीरीज। 4f सीरीज का मतलब कौन सा हो गया, लेंथेनॉइड, और लेंथेनॉइड किसके पास आ रहे थे, लेंथेनम के बाद, और लेंथेनम से जो पहले वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, जिनोन। ठीक है, एक बार आप पीरियोडिक टेबल देख लेंगे कैसे आइडेंटिफाई किया, एलिमेंट नेम लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 6 है, यहां पुटअप कर देंगे, तो 6 - 2 यानी क्या आ गया, 4f सीरीज जो है वो किसके बाद आती है, लेंथेनम के बाद, और लेंथेनम से जो पहले नोबल गैस आती है वो क्या आती है, जिनोन, यानी इसके जगह हम क्या रख देंगे, जिनोन रख देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 7, उसके बाद D में 1 और S में 2, सम करेंगे यहाँ पे 2 + 1 + 7 कितना हो जाएगा, 10, और जो जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 54। तो हम इट मीन्स हम यहाँ पे एलिमेंट का नेम निकालना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 54 प्लस यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 प्लस फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 2, ये हमने क्या निकाला है इसका, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। तो सम करेंगे कितना आ रहा है यहाँ पे 64 एटॉमिक नंबर, और 64 जो एटॉमिक नंबर रहता है वो बेसिकली कौन सा एलिमेंट होता है, गैडोलीनियम। एक बार आप देख लेंगे गैडोलीनियम। तो इस तरह से हमारे को ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट द 6 पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट। इट मीन्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर ऑफ पीरियड 6 है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 32 होते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, पीरियड गिवन है आपको, कितना पीरियड गिवन दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी क्या गिवन दे दिया, n की वैल्यू दे दी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का n की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 6 गिवन है। और वी नो वेरी वेल जो नंबर ऑफ पीरियड होता है 6 होता है, तो नंबर ऑफ पीरियड 6 में जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो कौन कौन से बिलोंग करते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट और D ब्लॉक एलिमेंट। इट मीन हम यहाँ लिख देंगे S ब्लॉक एलिमेंट, आफ्टर डेट हम क्या लिख देंगे, P ब्लॉक भी रहता है और D ब्लॉक भी रहता है, D ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद इसी D ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 3 रहता है वो कौन सा रहता है, F ब्लॉक भी आते हैं इसमें, F ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा इसमें, P ब्लॉक एलिमेंट, यानी सारे ब्लॉक के एलिमेंट इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करना चाहें जो S है, S ब्लॉक का मतलब क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, S सबशेल में, यानी S ऑर्बिटल में। तो S ऑर्बिटल में हम बात करें कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे, 1। D में बात करें, D में कितने सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। आफ्टर डेट F ब्लॉक की हम बात करें, F ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। और P ब्लॉक की हम बात करें, P ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल रहा हूँ। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कैसे आइडेंटिफाई किया, हमने यहाँ पे पहले एलिमेंट देखे पीरियड में कौन कौन से आ रहे हैं, उसके बाद उस ब्लॉक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में वेरी कर रहा है, उससे फिर हमने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल दिया। कितने ऑर्बिटल आए यहाँ पे, 5 1 6 6 और 7 13 और 13 और 3 16 नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एंड वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल लगा देंगे,
अकॉर्डिंग टू पाउली लॉ। हमने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 2 में कि जो ऑर्बिटल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाउली लॉ हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे, 2 को मल्टीपल कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल से। तो कर दीजिए, 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32। तो ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो ये हमने कैसे स्टार्ट किया, आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल होनी चाहिए, हमको ये मालूम होना चाहिए पीरियड में कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं। आफ्टर इसमें हमने ऑर्बिटल निकाला, ऑर्बिटल को हमने 2 से मल्टीपल किया तो इलेक्ट्रॉन आ गया, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आइडेंटिफाई करेगा कि जो नंबर ऑफ पीरियड 6 है उसमें कितने एलिमेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप you have understood this part. I will suggest you that go through this part by NCERT book. Okay student, thank you.